Hello dear students. In the part of revision from chapter 3, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, on page 18. Today we are going to see working with language of this chapter. Okay, the exercises. The first exercise which we are going to see here. We have already solved all these exercises, but I am just explaining you. Okay. Now here the first exercise, you could see some example are given there. The priority is given to what? Had to, had to. So actually I think everybody knows that where do we use had and have. अगर हम पूछे कि had और have हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, we use it for perfect tense, isn't? Where it is perfect tense we use had and have and has. And have and has we use for present perfect and had we use for past tense. But here it is little bit different. Okay. Now here the word, it is not only had or have. The word, the one more preposition is joined along to it, that is to. Had to. So here it is not working as a tense. यहाँ पर ये टेंस का वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है. इट इज़ नॉट वर्किंग एज अ वर्ब हियर. क्लियर? हियर द वर्ड हैड टू, इफ ज्वाइंड विथ टू, इट वर्क्स एज एन ऑब्लिगेशन, मीन्स नेसेसिटी ऑफ अ वर्क. यहाँ पर जो वर्ड है, इट शोज दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर समवन टू डू समथिंग. It shows that the other word we could use for it is must. Means he had no choice, he had to do that work. So here we use this word not for a tense. Clear? We use it for showing the obligation, the necessity of the work. So the word had to. You could see here by is a main verb here, isn't? So here it is showing the necessity of doing the work. So just to explain this thing more clearly, I would like to show you some more example related to it. So let's see. So here see, have to, it is not an auxiliary verb. Okay, have to is not an auxiliary verb. You all would have learned auxiliary verb which are also called as modals. Okay, तो यहाँ पर जो have to है वो कोई model नहीं है. Okay, it is used to here, it include have to for more convenience. Okay, must is a model auxiliary verb and just to replace it we have used this word have to. लेकिन हम have to को auxiliary verb नहीं बोल सकते, ठीक है. Only must is an auxiliary verb, not have to. In this lesson we look have to, must and must not. Okay, so here you could see we often use have to say something is obligatory. It means children have to go to school, यानी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, isn't? Here it is showing the necessity that a child must go to school. So here it is an that thing. Now here in this you could see the structure of the sentence, that subject होता है, ठीक है. चिल्ड्रन जैसे हमने अभी सेंटेंस पढ़ा, चिल्ड्रन, फिर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा था? हैव टू, ठीक है. और हैव के साथ हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया. तो चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड व्हेन वी यूज हैव एज अ मेन वर्ब, ठीक है, एंड नॉट एज अ मॉडल वर्ब, बट इट इज़ ऑल्सो grouped with model auxiliary verbs for convenience. Clear? Here are some example. You could see she is a subject here. Main verb have, अगर she है तो we use has, isn't? I, we, you and they के साथ हम have use करते हैं, और she, he के साथ has. She has to work. तो here has and to is showing the necessity, the must of doing the work. सो इस चीज़ से आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि वाई डू वी यूज़ दिस थिंग हैव टू. ओके, इट इज़ नॉट यूज्ड एज एन टेंस और auxiliary, it is used as an auxiliary, not as a tense. So let us see this exercise now. I think everybody would have filled it. I have given you answers already. First, in the first we will use I. So I have to cut my hair,
इज इट, बिकॉज इट इज़ आई, तो आई के साथ हम हैव, वी के साथ हम गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर है, इजंट इट मीन्स पिछले साल, तो वी विल यूज पास्ट टेंस दैट इज हैड टू गो फॉर स्विमिंग. शी, अब यहाँ पर टेल है, ठीक है. शी हैड टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, उसने प्रिंसिपल से सच बात कही, इट मीन्स शी हैड टोल्ड इट ऑलरेडी, सो हियर वी विल यूज हैड. दे टेक द बेबी टू द डॉक्टर, ठीक है. सो दिस ब्लैंक यू हैव टू फिल ऑन योर ओन. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस एक्सरसाइज, और मैंने आपको 2-3 सॉल्व करके बता दिए हैं, और आंसर्स तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ. सो यू वुड हैव ऑलरेडी सॉल्व ऑल दिस थिंग. सो ट्राई टू सॉल्व दिस 4 blanks on your own. Now let us move further. Now you would have read about the idioms, ठीक है. idioms जिसको हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में फ्रेजेस, मुहावरे, लोगोक्ति इस तरह से भी कह सकते हैं. मीन्स द वर्ड्स आर समथिंग डिफरेंट बट हैविंग सम डिफरेंट मीनिंग. क्लियर, वर्ड्स अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और निकलता है. सो हियर सम वर्ड्स आर गिवन देयर and it is said that you have to find the meanings for these things from the dictionary, ठीक है. So let us, I will give you some idea about it and you have to try to make sentences on your own. इन वर्ड्स के आप मीनिंग ढूंढो और सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. सो इट वुड बी ईजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. क्लियर. सो व्हाट एक्चुअली इडियम्स आर, इसमें सबसे फर्स्ट होता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, या फिर इसमें एडवर्ब भी हो सकता है, बट इट डज नॉट हैव, इट इग्नोर्स आर्टिकल्स, ओके, और prepositions in the idioms. Now at from close quarters, from close quarters यानी very from nearby, ठीक है, very close to something. तो here the word close is an adjective. ब्रेक इंटू अ स्माइल, तो ब्रेक इंटू अ स्माइल इट मीन्स हमारी स्माइल क्या टूटती थोड़ी है, इट डजेंट ब्रेक, इजंट, बट ब्रेक इज अ वर्ब इंटू प्रपोजिशन, ठीक है. तो अब नॉट एक्चुअली स्माइल ब्रेक्स, व्हाट हैपन्स, टू स्माइल सडनली, अचानक से हंसना, इजंट, टू स्माइल सडनली, सो दैट इज सेड टू बी ब्रेक इंटू अ स्माइल, मीन्स टू ब्रेक, सॉरी, स्माइल सडनली. कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू विद द वर्क, हम कहते हैं ना कैरी ऑन योर वर्क, तो कैरी का मतलब तो उठाना होता है, ऊपर उठाना, तो व्हाट इट डजेंट मीन कि वास्तव में ऊपर उठाना. व्हाट इट मीन्स हियर, इट मीन्स टू कैरी, टू कंटिन्यू विद द वर्क वॉट एवर anyone is doing, so that is called as carry on. Having a clean record, you may find related meanings under both these words, यानी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मीनिंग में चेंज आए, बट क्लीन रिकॉर्ड का मतलब होना है कि क्लीन कंडक्ट, क्लीन बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, साफ सुथरा कैरेक्टर, ठीक है, थ्रू आउट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. यानी उसका जो ऑफिस में जो उसका रिकॉर्ड है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड, वो बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा है और अच्छा है. सो हियर इट मीन्स हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. बीट अबाउट द बुश, नाउ बीट अबाउट द बुश हियर मीन्स टू मेक गेस, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना बिना उस बात के नॉलेज हुए, ठीक है. बीट अबाउट द बुश मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बस बिना नॉलेज, उस चीज़ का नॉलेज हुए हम ऐसे ही अपने अंदाजे से उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है. सपोज इफ़ एनी पर्सन, न्यू पर्सन कम्स टू यू एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में आप बातें करने लग जाते हो कि ये तो ऐसा है वैसा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बीटिंग अबाउट द बुश, मीन्स हैविंग नो नॉलेज अबाउट दैट थिंग एंड जस्ट टॉकिंग, सो दैट इज़ हियर बीट अबाउट द bush. So refer to your dictionary and find out what they mean. So here I have explained you even with the meanings. So you have to find out what these words actually mean. Okay, and try to solve it in your rough notebook. Last, here this exercise which I have already given you in a solved form. These are jumbled sentences. Okay, and same thing having, सेम थिंग जो हमने अभी पढ़ा, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन,
है ना, यानी मुहावरा होना उसमें। तो दिस सेंटेंस इज हैविंग वैनिश्ड इनटू एयर, हवा में गायब हो जाना। क्या एक्चुअल में द कार हवा में गायब होती है? नहीं। क्या होता है, वो कार अचानक से स्पीड से वहाँ से चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं, हवा में गायब हो गई। तो इट डजेंट मीन दैट द कार रियली हवा में गायब हो जाती है। ओके, तो इट इज़ जस्ट एन idiomatic expression to make it more impressive. We use these things. Here we have read the first sentence is that beating about the bush. यहाँ पर क्या है, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बीटिंग अबाउट द बुश, जो जस्ट अभी हमने ऊपर की एक्सरसाइज में देखा है ना। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस सेंटेंस, तो आपको ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। और ये सेंटेंस आपने अगर सॉल्व नहीं किया है तो सेल्फ इन वर्ड्स को अरेंज करके आप लिखोगे। व्हाट यू विल राइट, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट, यानी हवा में बातें बंद करना बंद करो और तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। सो हियर इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। In this, don't pay if you attention, you might the wrong train to the announcement board. Means if you don't pay attention, तो here the idiomatic expression is don't pay attention, है ना, यानी ध्यान नहीं देना। तो here is if you don't pay attention to the announcement, you might board the wrong train. अगर तुमने अनाउंसमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो यू विल बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, डोंट पे अटेंशन का मतलब, टू पे अटेंशन मीन्स टू बी केयरफुल, ध्यान देना। क्लियर। नाउ हियर इन दिस इज टू पिन द क्राइम। टू पिन द क्राइम मतलब किसी बेवजह किसी गलत इंसान पर उसको गुनहगार साबित करना। ठीक है, टू पिन द क्राइम यानी जो क्राइम उसने नहीं किया उसके लिए उसको क्रिमिनल ठहराना। ओके, सो हियर वी कुड से टू इम्प्लीकेट द रॉन्ग पर्सन। ओके, द विलेजर्स ट्राइड टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमेन। क्लियर। नेक्स्ट इज बिपिन बाबू's orders to telling people under love doctors eat early that he was. So here the idiomatic expression what it is, under doctor's orders. Okay, so here it means to be under instruction of someone. ठीक है, किसी के इंस्ट्रक्शन के अंडर रहकर हमको काम करना। क्लियर। लास्ट फिफ्थ वन इज raised his eyebrows. raised his eyebrows, इस सेंटेंस में ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है विच शोज अनोयंस, यानी इरिटेट होना, इरिटेटेड बताना। जब हमसे कोई बात करता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम कैसे अपने आईब्रोज ऊंचे करके उसके प्रति हम अनलाइक डिसलाइकनेस बताते हैं, इजंट? सो दैट इज कॉल्ड एज अनोयंस. So here raised his eyebrows is an idiomatic expression here. So here I have explained you this exercise. Try to solve it in your rough notebook so that it would be by heart to you and useful for your test or exams. Okay, so you have to try it. आपको ये solve करनी है और by heart करनी है. Next जो है letters हैं, ठीक है? तो I think if ma'am doesn't make you to do this, I'll make you to do. Here is an letter. Okay, write a letter to चुनीलाल promising to help him soon. यानी पूरे कंडीशन दे रखा है, तो आपको लेटर लिखना है। कैसे लिखना है मैम आपको हमेशा ग्रामर की क्लास में बताती ही है। सो यू हैव टू राइट अ लेटर. ओके, और अ प्रैंक इज़ अ चाइल्डिश ट्रिक. Do you remember any incident when someone played a prank on you or your friends? Describe the prank in a paragraph. यानी आपके साथ किसी ने कोई मजाक किया हो, ठीक है, जिसको आप बहुत सीरियसली ले लेते हो लेकिन लास्ट में वो मजाक निकलता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो राइट इट इन अ पैराग्राफ. डिस्क्राइब एनी सच इंसिडेंट्स विच हैड हैपन टू यू और टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. या तो आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ, किसी के भी साथ ऐसा कोई प्रैंक हुआ हो आपको याद हो, तो you have to write a small paragraph on it. Okay, so try to solve these two things in your
rough notebook. So here we have completed our class today. Okay, thank you. If you have any problem, you could message me. Clear? So do these two things and that exercise by heart.